event. We are honored to have you here today and we are eager to put you with a bouquet as it is a symbol of our appreciation and admiration.
Now I request everyone to stand in your own place in honor of our national flag. Now national anthem will be sung. आप सभी लोगों से अनुरोध किया जाता है कि आप जहीं कहीं भी हैं अपने जगह में खड़े हो जाएं, अभी राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, अनजहाँ का, अनजहाँ का, देश की सेवा, देश की सेवा, वंदे वंदे, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड दाएं मुड़ेंगे दाएं मुड़, परेड कदम ताल शुरू करेंगे शुरू कर, परेड सामने से तेज चल, journey of our nation, the spirit of freedom and the valor of those who fought tirelessly to secure it. As we proudly raise our tricolor flag, we are reminded the sacrifices made by our forefathers to free us from the cycles of colonial rule and pave the way for a sovereign and democratic progressive India. The struggle for independence was not merely a political movement, it was a battle fought with determination, resilience, and unity. Our constitution, which came into force 26 January 1950, enshrines justice, liberty, equality, and fraternity as its fundamental principles. It provides us with a framework for building a nation where
The rights of each every citizen are protested and their aspirations nurtured. Today, as we celebrate 77th Independence Day, it is necessary to reflect on the values and ideas that have shaped the identity of our country. As we celebrate the spirit of freedom, it is let us not forget the sacrifices made by the frontline workers, doctors, nurses, and essential service providers who have stood firm in the face of the COVID-19 pandemic. It provides their dedication and commitment to serve humanity during these challenging times. They epitomize the true spirit of our nation. In conclusion, let us remember that the progress and development is a continuous one. Each of has a role to play in shaping the destiny of our nation. As responsibility citizens, it is our duty to uphold the values of our constitution, embrace diversity, and work toward an inclusive India where the potential individuals is realized. As we look back at our history, let's draw inspiration from the struggle of our forefathers and rekindle the flame of patriotism in our hearts. Let this Independence Day remind us of our responsibilities towards our nation and our fellow citizens. Jai Hind, Happy Independence Day. As primary students, we may think that we are small, but we can still do great things for our country. We can respect our elders, be kind to our friends, and keep our surroundings clean. We should also study hard and be good, whatever we do, because one day we become learn for our country. Our activities today will shape the future of India. Let's be responsible citizens and make our country proud. Thank you. लड़ी और आज भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और विकसित देश आगे बढ़ रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने वीर शहीदों को सलाम करना चाहिए, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर हमें आजाद भारत दिलाया। उन्होंने सत्य ही अहिंसा और एकता के मार्ग पर चलकर हमारे लिए एक मिसाल कायम की। इस दिन हमें अपने देश के गौरव में डूब जाना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए। हमें अपने देश के इस जश्न के दौरान याद रखना चाहिए कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता में मूल सिद्धांतों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान का रिश्ता बनाए रखें। हमारे देश में एकता और भाईचारे के साथ रहना हमारा गौरव है। इस स्वतंत्रता दिवस का हमें सम्मान करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हमें अपने देश को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दिल को सब ये ज़मीं चूम कर। छात्रों को नमस्कार। आज हम यहाँ एक महान एवं गौरवपूर्ण दिन 15 अगस्त 2022 के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज से 76 साल पहले हमारे देश के वीरों ने अंग्रेजों की गुलामी जंजीरों को तोड़कर इस देश को आजादी दिलाई थी। विद्यार्थियों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश की आजादी आसमान से भी ऊंची है और हम भारत माता के पुत्र हैं। हमें इस महान देश की समृद्धि और सम्मान को बनाए रखना है। हमें आने वाले कल में इस देश को और भी महान बनाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना है। इस दिन हमारे लिए जरूरी है कि हम आजादी की कीमत को समझें, आने वाले पीढ़ियों को इसकी सीख दें।
इस महान देश का संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। स्वतंत्र और समृद्ध भारत के लिए हमें मिलकर कड़ी मेहनत करनी होगी। इस विद्यार्थियों ऐसा प्रतीक होता है कि आप भविष्य के सच्चे नेता हैं। आपको ईमानदार और मेहनती, प्रेम पूर्वक समरूप होकर भारत माता की सेवा करनी है। इस स्वतंत्रता दिवस में मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आप सच्चे भावनाओं के साथ अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Friends, Happy Independence Day to all of you. On this special day, let's talk about what it means to be a responsible citizen. As primary students, we may think that is small, but we can still do great things for our country. We can respect our elders, our friends, and keep our surroundings clean. We should also study hard and be good at whatever we do, because one day we will become leaders of our country. Our action today will shape the future of India. Let's be responsible citizens and make our country proud. जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आज हम पूरे देशवासी भारत देश के हर कोने कोने में इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। भारत ही नहीं परंतु भारत से बाहर हमारे चाहने वालों वे भी तिरंगा झंडा फहरा के हमारी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे गेस्ट बंधु, स्कूल के चीफ मार्टिन क्रिकेटा जी, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकागण, ये छोटे छोटे बच्चे, और बच्चों के अभिभावकगण यहाँ सब इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस की याद को बरकरार रखने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस स्वतंत्रता भारत में हम जीते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है भारत देश बहुत ही संपन्न देश था, बहुत ही मजबूत देश था, भारत बहुत धनी देश था। इतना धन संपत्ति होने के बाद भी इतने ताकतवर राजाओं के होने के बावजूद भी हमारा देश गुलाम कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है। किस जगह हमारे शासकों ने गलती किया जो 200 वर्ष तक हम गुलाम में रहे, 200 वर्ष तक हम बंधक में जीवन जिए। कारण क्या हो सकता? आजादी के पहले की छोटी सी इतिहास में जो लिखी है
उस कहानी को मैं बताना चाहूंगा। लास्ट में हमारे सम्राट थे, बहुतों ने पढ़ा होगा। उस समय युद्ध हुआ। उस समय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के साथ में। पृथ्वीराज चौहान भारत का था और मध्य प्रदेश, जो अभी छत्तीसगढ़ बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश में ही आता था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब उसका क्षेत्र था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध होती है। उसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय होता है और एक बार विजय नहीं, 16 बार विजय होता है। और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, उसको गुलाम नहीं बनाया उसको। वही एक कारण थी। 17वें बार जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ा, लेकिन मोहम्मद गौरी एक बार भी पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा, तो बंधक बना लेता है। वही कारण था पूरा भारत का सत्यानाश हो गया, भारत तहस-नहस हो गया, भारत की व्यवस्था खत्म हो गई। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इतना जबरदस्त सम्राट था, वो इतना वीर पुरुष था कि दूर दूर तक उसकी चर्चा थी और किसी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए भी सोचना पड़ता था। वही एक कारण हुआ, मेन कारण है कि हमारे भारत देश की उदारता। हो सकता है व्यवस्था खराब होने का कारण हो सकता है कि हमारी भारत देश की उदारता। खैर, अभी तो हम स्वतंत्र हैं। धीरे धीरे अंग्रेज भारत में आए और अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। करते करते 200 वर्ष तक हम गुलामी थे, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े महापुरुषों की वजह से, हमारे पूर्वजों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। सभी को बधाई के पत्र हैं। आज हमारा देश उन्नति की ओर जा रहा है, आज देश विकास कर रहा है। यहां उपस्थित अभिभावकों से उनको पता होगा, हमारे देखते ही देखते हमारे क्षेत्र में बहुत सारा विकास का कार्य हुआ है। अभी इंग्लिश मीडियम यहां खुल गई है। इसी जमीन पे मैंने देखा है मूंगफली का उगता था, अब स्कूल खुल गया है। इसी आसपास में गाड़ा चलती थी, बैल की गाड़ी चलती थी, अब वहां कार चलने लगी। सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बन गई हैं। 15 अगस्त इसी को याद कराती है और करने का दिन है। उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है। बच्चे आज
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि बॉर्डर में खड़े हैं, कोई आ जाएगा तो उसको पूरा निपटा देंगे, इस टाइप से दिख रहे थे। नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए। बहुत धूप है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर एक चीज, शिक्षा का महत्व और शिक्षा का योगदान बहुत बड़ा है, और इसे हमें अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा देना हम लोगों का कर्तव्य है। इसमें शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा की वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। शिक्षा की वजह से महात्मा गांधी अपने शिक्षा की वजह से, जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर की वजह से वो पूरा देश को आजाद करा दिया। साथियों, ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहीं से मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू।